Good morning, everyone. I request all the speakers to be on stage for a photograph. Thank you. सुनो तो क्या नहीं करते सारा till last. Thank you. A very good morning to all you literature enthusiasts. I'm Kavin Panchal, welcome you all to the second day of Ahmedabad International Literature Festival. After a successful day one, we are ready to embark on another day that will bloom with creativity, knowledge and discussions. We will now start with our first session of the day, Literature and Cinema, Stories that Lead to Blockbusters. Stories used to form the backbone of earlier cinema, and many times it was the story itself which carried the films and made them super hits. However, times have changed. Nowadays, many times in many films, stories have yielded place to action, comedy, songs, dramatization, and many other elements. Our first session today talks about how literature and cinema form a marriage of success. I will now take the time to introduce to you the panelists in this session. Nowadays, Gujarati movies seem to rock the film industry. And who knows it better than Abhishek Jain? Today we have with us a man who, with his distinctive creative sensibilities, marries the marketive and imaginative in a form that entertains all. Abhishek Jain is a filmmaker and founder of Cineman Productions Limited. His passion and love for Gujarati language and cinema has inspired him to make path-breaking films that are KBD Vinchej and Deya. In June 2015, he also published Aako Just Vaat Che, a book on his experiences while making his first two urban Gujarati films. Mr. Jain's innate understanding of business of film and as a filmmaker continues to inspire young filmmakers and set benchmarks for the Gujarati film industry. Can we have a round of applause and please welcome Mr. Abhishek Jain on the stage. Author, writer, director and producer, Piyush Bhatt is currently the administrator of Jai Ghosh Theatre and the Jahangir Group of Drama. He also shows his expertise as a mandolin player and often accompanies various groups of Sugam Sangeet of South Gujarat for district and state level competitions. Recipient of various awards for his writing, Mr. Bhatt has authored many books and now runs a production house that makes documentary films, short films, advertisements and biopics. I request Mr. Piyush to please come up on stage. We also have with us Mr. Sandeep Nath, who is a lyricist, screenwriter, director and producer in Bollywood. His passion for literature started at an early age, which has shown through the variety of book and poems authored by him. Mujhe Kuch Bhi Naam Do, Darpan Ab Bhi Andha Hai, and a mosaic are some of his creative works. Sandeep Nath has also swayed the melodies of our hearts by writing the lyrics for more than 50 Bollywood films that include Savarya, Ashiki 2, Page 3, Singham Returns, Pan Singh Tomar, and many more. With elements of filmography as his strong suit, he is currently working on a feature film, DNA Mein Gandhi Ji, that is set to release early next year. I welcome Mr. Sandeep Nath on the stage. An independent filmmaker and producer, her fervor towards filmmaking has led to a dazzling career in advertising and producing independent films.
Sumanna Mukherjee, founder of Pixel International, has made several shorts and documentaries including Eti, Charadhya, A Missing Smile and Voyage. Winner of several notable awards, her films have been widely screened in various national and international film festivals. She is also the organizer of Culture Curry, Committee Chapter Chairperson in Association Ladies League, and is associated with All India Film Director Organization. Sumanna believes that culture and literature complement each other when merged and can provide great platform for social development. I welcome you on the stage. Madhuri Sharma, who is Mrs. India 2015 and the reigning Mrs. Earth, will moderate this session. Being an ex-model, TV show host, video jockey, health coach and an interior designer, she has a vast body of work preceding her. She believes in uplifting others and spreading awareness about education and health amongst all. She has also won Nari Ratna Award in 1997. A warm welcome to all our panelists this morning. We begin the session now. Good morning everyone, and as I said yesterday, came to Ahmedabad, and a warm welcome to our panelists today. Today we're going to be talking about literature and cinema, and stories have formed the backbone of earlier cinema, and in many times it was just a story alone that carried films. And nowadays, in modern cinema, stories have given way to dramatization, comedy, songs. So, what do you all feel that what role does literature play in cinema? I think literature plays very important role, Madhuri, because from beginning, if we say history of cinema, whether it's Alam Ara, or whether it's Mughal Azam, whether it's Devdas, whether it's recently made Three Idiots or Kai Poche, all are literature driven. Even my next movie, which is going to set for release, it's also based on Atinela Charathan, it's based on Charathan, and the narrative was novel. So for me, I feel literature is a part of cinema, and cinema is itself a literature. Good morning to all of you. Jai Shri Krishna. હમણાં હર્ષિતે સવાલ પૂછ્યો, ખાધું નાસ્તો કર્યો કે નહીં? અવાજ ઓછો હતો તમારે ક્લેપમાં. ઓકે. At the outset, I would like to express my deep sense of gratitude towards the team of Mr. Uma Shankar. All the youngsters, still I feel a lack of strength or energy in you. Have you come without breakfast? No. So I want you to applaud violently. Thank you very much. What we witnessed yesterday, right from the morning till late at night, 9 o'clock, 9 p.m., and what we are going to witness today for the whole day, let me tell you that it's the result of the tremendous pain and labor taken by this team. It is absolutely hats off to you, Master team, particularly youngsters. And now about the question. So, literature and cinema. So, let me clarify first of all. There is a man or a woman. He takes one subject from the life or conceptualize a topic, develops a story, makes the screenplay and puts it on paper, then makes a film. Hundreds and lakhs of people go to the theater to watch that movie. They are fascinated, they are hypnotized,
like the scenes of the actors or acting or music, say whatever thing, photography. And then what happens? We differentiate here literature and cinema. Why literature and cinema? She said that literature and cinema both are equal. So yesterday Madhurji also gave an indication that what I make, what I create is literature. Can't we tell that its film itself is a literature on screen? It's a moving literature or a cinematic literature. But when the title is literature and cinema, we are bound to discuss the impression or the influence of literature, what we traditionally call literature, that is printed form, literature in printed form, not on screen. So, we are going to talk about that influence of those books. There is a tremendous influence over cinema. Dave. मुख्यतः इन 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पौराणिक कथा वो है जो आपकी माइथोलॉजी में है, स्पेशली इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहूँगा। उसके बाद दंत कथाएं हैं जो बोलकर और किस्से कहानियों के रूप में सुनी गई। उसके बाद एक कहानी होती है जो खुद बनाई जाती है किसी की खुद देखकर समझकर परिस्थितियों के हिसाब से। वो जो बनाई जाती है कहानी, उसमें कहानी क्या है, क्यों है, इस पर एक लाइन बोलता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ फिल्म स्कूल्स में बातचीत करने के लिए, पढ़ाने जाने के लिए कहना बड़ा गंदा सा लगता है क्योंकि हम सब खुद स्टूडेंट हैं, वी ऑल आर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट्स की बातचीत होती है, तो उसमें मैं पूछता हूँ सबसे कि एक लाइन ये बताइए कहानी कहते किसे हैं। तो बेचारों को किताब में वी हैव 3 सेशंस, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या एक्ट 1, एक्ट 2, इस तरह से डिटेल में बताते हैं। मैंने भैया जैसे माँ एक शब्द में बयां हो जाती है, ऐसे कहानी को बयां करो तो कहानी का मूल तत्व तो समझ में आ जाएगा। तो मैं एक लाइन में कहता हूं उनसे, बोले सर आप ही बता दीजिए कि कोई बात, घटना या चरित्र चित्रण, कोई बात, घटना या चरित्र चित्रण जिसको बार बार कहने और सुनने का मन करे उसे कहानी कहे। अगर उसको बार बार कहने का और सुनने का मन नहीं करता तो वो बात है या घटना है या कोई एक आदमी है। रामायण क्यों कहानी है? क्योंकि वो बार बार कहीं सुनी जा सकती है। उस पर डायमेंशंस ऑफ ए कैरेक्टर है, राम है, भाईचारा, कर्तव्य, बहुत सारी चीजें हैं, महाभारत। इसी तरह से कोई बात जब उसमें बार बार कहने की और सुनने की क्षमता आ जाती है तो उसमें कहानी का लक्षण आ जाता है। तो इसको कहते हैं, इसको फिर आगे जाके फिक्शन कहते हैं, जिसको हम रचते हैं। तो सिनेमा जब बनना शुरू हुआ और दादा साहब फाल्के जो हमारे युग पुरुष हैं सिनेमा के, तो उन्होंने पहली फिल्म की, जैसा सर ने बताया, राजा हरिश्चंद्र बनाई। तो हरिश्चंद्र की हमारी एक दंत कथा या पौराणिक कथा जिसको माना जाए उसका एक अंश है, और वहां से उनको वही कंटेंट मिला। उसका बहुत सारी फिल्में बनती गई। फिर धीरे धीरे समाज की फिल्में बननी शुरू हुई। फिर वो एक सुनहरा दौर आया 50 के आसपास, जिसमें जो सामाजिक विसंगतियां थी, जिसमें औद्योगिकीकरण, आपको एक पुराना डायलॉग होगा, माँ भैया को नौकरी मिल गई है, एक बहुत पुराना डायलॉग। उस समय बेरोजगारी बहुत बड़ी चीज थी, तो उस पर। और आज भी हम कभी कभी देखते हैं भगत सिंह पे एक साथ 4 फिल्म बनती है, वो घटना पहले घट चुकी है। तो लोक कथाओं पे फिल्में बनती है। और अब मैं इसका सीधा जवाब देता हूँ कि सिनेमा साहित्य का एक फॉर्म है जिसका कंटेंट इन 4 प्रकार से आता है। और 2 सिनेमा का फिल्म का नाम लूंगा हिंदी में। एक फिल्म बनी थी गाइड, मेरे पैदा होने से पहले, और एक फिल्म बनी थी तीसरी कसम। जिस जो गाइड है वो R.K. नारायण के नॉवेल के ऊपर बनी थी फिल्म, बहुत एड ऑफ टाइम फिल्म थी, आज भी प्रासंगिक लगती है। विजय आनंद जी ने 26 साल की उम्र में उस फिल्म को बनाया था एज अ डायरेक्टर। और जो तीसरी मंजिल है वो मारे गए गुलफाम फरीश्वरनाथ रेणु जी के उपन्यास पर बनी आधारित फिल्म थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ जिक्र भी कर दूं, बंगाल में परंपरा बहुत पहले से रही है। वहां पर देवदास मुझे लगता था सच्चा कोई आदमी होगा, बहुत बाद में पता चला कि ये शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की कल्पना है। इतना वो मुझे जब दिल साहब वाली मैंने देवदास देखी तो मुझे लगा असलियत में ऐसा हुआ होगा, लेकिन बाद में पता चला वो फिक्शन है। तो इसलिए सिनेमा तो ये तय हो चुका है। और उमा शंकर जी ने हमें बुला के और थोड़ी सी इज्जत देकर और आप लोगों ने प्यार देकर साबित कर दिया कि सिनेमा लिटरेचर का हिस्सा है। माधुरी जी ने मुझे ये आदेश दिया है कि मैं ज्यादा वक्त ना लूं, तो मैं इस सवाल का जवाब तो यही खत्म करता हूं। उम्मीद है आपको पूरा जवाब मिल गया होगा।
तो वो जो भटकन नहीं होनी चाहिए, जो मैं बार बार कहता टीवी की हर बहस के बाद मैं उठता हूँ, मैं जहाँ से शुरू हो तो वहीं लाके खड़ा कर गोल चौराहा। तो हम चाहते हैं हमारे सेशन में गोल चौराहा ना हो, और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे कम से कम। अगर जवाब मिल गया तो मैं अभिषेक को देता हूँ। अच्छा, अभिषेक और मैं कलीग हैं, जो अभी मुझे पता चला ये सावरिया में असिस्टेंट डायरेक्टर थे और मैंने सावरिया में गाना लिखा था, तो वहाँ तो नहीं मिल पाया, आज हम यहाँ साथ में बैठे हैं, वेरी हैप्पी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबने जो कहा लगभग वही बात है सिनेमा और लिटरेचर के बारे में, लेकिन एक और एडिशनल बात ये कहना चाहूँगा कि सिनेमा की शुरुआत ही लिटरेचर से होती है, क्योंकि जब तक आप स्क्रिप्ट ना लिखें, और स्क्रिप्ट एक लिटरेचर ही है, उसके बाद में उसको इंटरप्रेट करता है वो डायरेक्टर, और उसके टेक्स्ट के बियॉन्ड उसके सब टेक्स्ट को समझता है, और उसके बाद में उसको किस तरह से विजुअल फॉर्म में लाना है ऑडियो के साथ में, वो सोच करके वो लिटरेचर को एक ट्रांसफॉर्म करके एक अलग फॉर्म में, जैसे आपने कहा, उसमें लेके जाता है। बट इट ऑल बिगिंस फ्रॉम द स्क्रिप्ट, एंड स्क्रिप्ट इटसेल्फ इज लिटरेचर। I think that was excellent, Abhishek, what you said, that script actually is literature. I would like to particularly ask Sumana Mukherjee and Sandeep Nath and Abhishek Jain, what were your considerations in making the film which is being screened at the Kolkata Film Festival, which is based on a book? And what were your considerations while making DNA Makes Meghandiji, and what were your considerations when you made Wrong Side Raju? When I was going through several books, and my director, Shankar Ghosh, he came up with this idea that we should make some movie which is based on literature of Rabindranath Tagore. So we are going through the discussions, and then we finalized, say, let's make Pancharathyay, and let's adapt that movie according to today's scenario. We can't portray 1934. So we should connect the literature, which is already have been written so many years ago, to today's world, and how today's youth are taking that piece of art, piece of literature. So we started the journey through our script. We started writing the script, and then what we did is we divided in two parts. The film is basically contrast of 1934 when the novel was written, and now that is today's era. So for me, or for our team, we believe that literature and cinema goes in hand to hand. Otherwise, it will never, nobody will make a film, can't make a film without a literature. And for us, we believe that cinema, on screen, cinema is that, you know that word, one picture says 1,000 words. So that's what I feel. Thank you. मैंने अभी एक फिल्म कंप्लीट की है, इसका नाम है डीएनए में गांधी जी। तो क्या हुआ, मैं इंडस्ट्री में बहुत दिनों से काम कर रहा था, बहुत लोग कहते थे आपको फिल्म बनानी चाहिए, अपनी कहानी कहनी चाहिए, रियल लाइफ में सुनते रहते हैं, पर्दे पे आएगा तो बहुत लोग देखेंगे। तो गांधी जी का जो एक रूप है सोशल रिफॉर्मर का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब बाद में अभी स्वच्छता, क्योंकि स्क्रिप्ट तो पहले निकली थी, स्वच्छता अभियान वगैरह वगैरह चीज़ें, और जनरली गांधी जी को हम लोग रोज देखते हैं नोटों के ऊपर, या फिर किसी भटके हुए से चौराहे के ऊपर। चौराहा भटका हुआ ना भी हो तो लोग भटके हुए हैं, या बेचारी मूर्ति भटकी है, कोई कनेक्ट नहीं है। लोग वहां से गुजर रहे हैं, गांधी जी इंतजार कर रहे, कोई मुझे हाय कहे, बाय कहे, कुछ तो कहे, तो बेचारे तो एक्चुअली हम ही लोग भटके हुए, हम हाय बाय भी नहीं करते उनकी ओर, हमें सिर्फ पता है इस रास्ते का नाम MG रोड है। अभी महात्मा गांधी रोड भी नहीं बोलते, MG रोड। ओके, हर शहर में एक महात्मा गांधी रोड होता है। खैर, तो ये सब बातें चलती रहती थी, और हास परिहास मेरे जीवन का एक अंग है, उसके बगैर मैं मर भी नहीं सकता, जीना तो छोड़ दीजिए। उम्मीद है मरूंगा भी तो हंसते हुए और हंसाते हुए, कोशिश तो रहेगी। और सादगी मेरे जीवन का कोर है,
उसके वो मेरे लिए ऑक्सीजन के बाद सादगी मुझे बहुत पसंद है। और हम हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी खासियत हमारी सादगी है। कितना भी आदमी अंग्रेजी में बात करे, किसी भी भाषा में बात करे, कोई भी कपड़े पहन ले, अंदर से हम लोग सीधे साधे सच्चे लोग हैं। और वही घुट्टी हमें पिलाई जाती है। हमारी माओ ने, हमारी मौसियों ने, चाचू ने हमें एक ही घुट्टी पिलाई, बेटा ये ठीक है, ये मत कर, ये मत कर। तो जब मैं फिल्म बना रहा था, और एंटरटेनमेंट होना चाहिए भाई, बिना फिल्म में एक ही बात से चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट बोलकर बोले, मुझसे कोई पूछे कि कहाँ रहते हो, मैंने जी इस दुनिया में। ओ भाई ये तो बहुत, फिर बोले जी एशिया में, तो ढूंढ नहीं पाएगा था। ऐसे लोगों ने एंटरटेनमेंट के नाम पे फिल्म बनाते हैं कुछ लोग, जिसमें कहानी होती है, उसका अंत होता है। कुछ लोग 2 घंटे का कुछ ऑडियो विजुअल प्रोग्राम टाइप का बना देते हैं जो कमर्शियल है, एंटरटेनिंग है। जैसे एक आप, उसको मैं बताता हूँ मजेदार बात, कि जैसे एक शो हो रहा है, अब अच्छा पहला गाना हुआ मान लीजिए लता जी का, अगला गाना सीधा यो हनी सिंह का हो गया। अच्छा उसका भी उनके पास लॉजिक है कि सब देखिए खाने में अचार भी देते हैं, हम लस्सी भी देते, सब चीज़ अलग अलग। अब बताइए लस्सी जो गाय से आई है, अचार आम से आया, वहाँ तो आप नहीं बोलते, सबका मजा लेते हो। तो ऐसे पिक्चर में भी होना चाहिए। तो 2 घंटे का ऑडियो विजुअल कैप्चरिंग होता है एक प्रकार से। अच्छा कब, हाँ 2 घंटे का ऑडियो विजुअल कैप्चरिंग है, उसका ना कोई सिर है ना पैर है, कुछ कुछ है। जैसे मॉडर्न आर्ट कभी हम सुनते थे, जो आज तक मेरे भी समझ में नहीं आई, शायद बनाने वाले ने इनके भी समझ में नहीं आता होगा मैंने क्या बनाया, कुछ तो बनाया, ढूंढ लो भाई अपने अपने तरीके से। तो वो वाली बात है। तो वो सिनेमा भी कहलाता है, क्योंकि उसमें स्टार्ट होता है, सेंसर बोर्ड आता है, फिर वो कास्टिंग आती है, बाद में दी एंड भी आता है, बीच बीच में कुछ गाने होते हैं, कुछ बातचीत होती है, कुछ ना उछल कूद होती है, अच्छे कपड़े होते हैं। तो वो बट वहीं से गड़बड़ी शुरू हुई। उसमें क्या होता है कि जो बेचारा मेहनत से सिनेमा बनाता है, स्क्रिप्ट लिखना जैसा काम, जो कि कोयले की खान में घुसे हुए मजदूर जैसा काम है, जो 200 फुट अंदर सबसे जो ट्रिमेंडस और सबसे डरावना काम है, काला पानी की सजा टाइप का, वो स्क्रिप्ट लिखना। आप अकेले होते हो, आपके साथ कोई नहीं होता है, आपको हवा से चीजें पकड़नी है, और हर वक्त डर लगता रहेगा ये अच्छा है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है। पहले खुद को समझाओ, फिर जो मान लो बीवी मिल गई कैसा है, अब बीवी के मूड के हिसाब से जवाब आता है। जैसे वो आंखों से कहना चाहिए तुम जवाब क्या चाहते हो, अच्छा तो लग रहा है, तो का क्या करूं, अच्छा लग रहा नहीं कहेंगे, अच्छा तो लग रहा है तो देख लो तुम। फिर और नर्वसनेस जो है और बढ़ गई, घर में स्वीकृति नहीं मिली, बाहर क्या होगा। लोग से निकले, पिक्चर देखने जाए, 200 रुपया दे, फिर बाहर निकले और गाली ना दें, और औरों से ना कहें भैया जाना मत, इतना डर सवाल रहता है। तो इसके बीच में ये काम करना होता है, ये काम इतना मुश्किल है, और इस काम की प्रतिभा सबसे कम दी है भगवान ने लोगों को। इस वक्त जब वो स्क्रिप्ट लिखने की क्षमता किसी को दे रहा था, यानी कुछ भी क्रिएट, ओरिजिनल हवा से पकड़ के क्रिएट करने की, तो इस वक्त भगवान थोड़े कंजूस हो गए, बहुत कम लोगों को ये क्षमता दी है। और जो इस क्षमता को पाता है उसको जीवन भर याचक यानी भिखारी की तरह बने रहना होता है। हर चीज को ऑब्जर्व करते रहो, लोगों को देखते रहो। कई बार मुझे लोग कहते हैं व्हाई यू आर स्टेयरिंग टू मी, आई एम नॉट स्टेयरिंग यू, आई एम स्टेयरिंग योर पर्सनालिटी। आंखों से पी जाना चाहता हूं आप, कई बार मैंने गलत समझ लिया और तो खासकर औरतें को जाओ तो क्या करूं, फिर बाद में बताऊंगा एक्चुअली आई एम अ स्क्रीन राइटर, सो हैव यू मेड एनी फिल्म, नॉट इट, आई एम ट्राइंग फॉर लास्ट 16 years। ओह माय गॉड। अब क्योंकि ऑब्जर्व करना कोशिश की ये जरूरत है, अब फिल्म बना लूंगा, आप बोलूंगा कि मैं अच्छा आप मुझे लेना चाहते हो क्या फिल्म में, आई ऑल्सो एक्टेड इन माई स्कूल एंड दिस दैट। अच्छा अगर इसको देख के मुझे लगा कि यार तुमसे मैं कैसे एक्टिंग करूंगा, नो नो माय डॉटर इज आल्सो वेरी गुड एक्टर, सो उसकी वो उम्मीद की किरण मतलब जगती रहती है, और मुझे मेरा कैरेक्टर मिलता रहता है कि कौन कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। मेरी ही अपनी फिल्म में एक छोटा सा रोल मुझे मजबूरी में करना पड़ा, बेवकूफ अमीर आदमी का, जिसके पास पैसे बहुत है, अक्ल नहीं है। तो मैं कई एक्टरों को बुलाया, ऑडिशन लिया, बोला सर बेवकूफ की एक्टिंग कैसे करें, हम लोग तो बेवकूफ नहीं है। तो मैंने कहा अपने आप ये कहना एक सर्टिफिकेट देता है, लेकिन तुम उसे ट्रांसलेट नहीं करता। तो संजय मिश्रा जी उसमें हमारे विलेन हैं, जो एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं और जिनके चुनाव निशान उल्लू है। अच्छा उल्लू मैंने सिर्फ हंसाने के लिए नहीं रखा, उसमें उसका पूरा लॉजिक आपको फिल्म में मिलेगा कि क्यों उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव निशान उल्लू रखा है। उनका फंडर हूँ मैं, उनको मैं फंड करता हूँ, और इस तरह कुछ मैंने कैरेक्टर की। एक एनआरआई है जिसके मुझे लंदन में सज्जन मिल गए थे, तो वो आए मेरे पास, तो वो अच्छा वो गुजराती थे, तो उन्होंने जब कहा गुजराती है, मैं तुरंत मिलने को तैयार हुआ। गुजराती के प्रति बड़ा प्रेम है, उसकी एक अलग कहानी है।
क्योंकि जब मैं बंगालियों का वो सुन रहा था कम्युनिटी कैसे बनी, तो उसमें ये पता चला कि कुछ लोग मछुआरे गुजरात से भी बंगाल की तरफ गए थे। मुझे लगता है मेरे पुरखे वही रहे होंगे जो गुजरात से बंगाल की तरफ गए। इसलिए मैं उनसे मिलने तो चला गया, बाद में पता चला ये वो गुजराती नहीं है, ये पाकिस्तान से सीधा कीनिया चले गए थे, इधर इस जमीन पे आए नहीं थे, तो वो वाले गुजराती। उन्होंने A.R. रहमान के शो से मेरे बात शुरू हुई कि मैं A.R. रहमान का शो कराऊंगा, तो मैंने कहा जी 2-3 करोड़ रुपए लगेंगे, वहां से वो 1 लाख तक के शो पे आ गया। अब मुझे मेरे साथ मेरा पार्टनर था, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, चलो यहाँ से। मैंने कहा नहीं, तुम्हें पता नहीं, तो बहुत ज्ञान दे रहे हैं बॉस, ऐसा कैरेक्टर मुझे आज तक नहीं मिला गया। तो मैं उनको ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, और वो हर वक्त देख रहे थे कि नाश्ते की थाली में मैं क्या मंगा रहा हूँ, इसका इतना पैसा और जुड़ गया, पूरा हिसाब चल रहा था उनके दिमाग में, मेरे दिमाग में मेरा हिसाब चल रहा था। उसी कैरेक्टर को मैंने ट्रांसलेट कर दिया इस पिक्चर के अंदर। तो मैं वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो डीएनए जब गांधी जी जब मैंने जो बनाई है, इसमें बहुत समाज की छोटी छोटी बातों को लेकर पकड़ा है और उसका कनेक्ट गांधी के साथ किया। गांधी की रिफॉर्मर वाले का फेस है जो थोड़ा सा छुप गया है, उनको राष्ट्रपिता बोल के इतना स्क्वीज कर दिया गया, इतना लिमिटेड कर दिया, अब किसी को पता कि राष्ट्रपिता है क्यों कैसे उतना पता नहीं। गांधी फिल्म में भी जो आया उनकी जीवनी, उसमें उनका जो सोशल रिफॉर्मर वाला भाग, क्योंकि फिल्म की अपनी लिमिट होती है 2-2.5 घंटा, उसमें दिखाई नहीं जा सकता। और गांधी दर्शन पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले तो इतने महान टाइप के लोग हैं वो हम लोग तक पहुंच नहीं पाते, हम उन तक नहीं पहुंच पाते, दोनों बातें, उनकी भी गलती नहीं, हम भी नहीं पहुंच पाते, उन्हें ढूंढ भी नहीं पाते। ऐसे में मुझे लगा ये एक फिल्म बनाता हूँ, इसका नाम होगा डीएनए में गांधी जी। अच्छा, टाइटल सबको पसंद आ गया, पहले तो टाइटल पे लड़ाई होती यार, बड़ा अजीब सा टाइटल रखा है, क्योंकि एक फिल्म है पेज 3 जिसके मैंने गाने लिखे थे। जब हम लोग वो फिल्म बनाते लोग कहते हैं तुम पागल हो गए हो क्या, ये क्या टाइटल रखा था पेज 3, इसके समझ में आएगा। खैर वो 2005 की बात थी, अब 2016, तो इस बीच में लोग बहुत फिल्म लिटरेट हुए हैं, तो लोगों को टाइटल पसंद आ गया, तो मेरी जान बची कि कम से कम टाइटल अब मैं बना पाऊँ। फिर उसके बाद अब मैंने काम किया इस पर, तो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा, और मुझे उम्मीद है कि यूथ को गांधी का एक नया डायमेंशन मिलेगा। अच्छा, इसमें गांधी जी लोगों ने कहा राजीव गांधी गांधी दिखाती, लोग कहेंगे उनकी नकल करो। मैंने पहले उसको कहा कि अच्छी चीज की तो नकल भी अच्छी बात है, अगर अच्छी चीज की नकल कर लूँ तो भी बढ़िया हो जाएगा, लेकिन इसमें गांधी जी नहीं आते हैं उस तरीके से। गांधी जी संदेश के रूप में हल्के फुल्के अंदाज में हर वक्त मौजूद हैं, तो फिल्म के लास्ट में आपको पता चलेगा गांधी की मूर्ति दिखाई देगी केवल, तो इस तरीके से है। और मुझे लगता है कि जब मैं फरवरी या मई के बीच में फिल्म रिलीज होगी तो मुझे बड़ा आनंद मिलेगा, और गुजरात की जनता तो ये धरती है गांधी की, तो बात ही खत्म है। थैंक यू। So, Wrong Side Raju, basically newspaper stories से influenced है, and when there were a couple of hit and run cases which were very popular nationwide and also this region wide or city wide, and we thought that it's all about perception play, क्योंकि 2 तरीके के ट्रायल्स होते हैं, होता है मीडिया ट्रायल, होता है कोर्ट ट्रायल, और जो कोर्ट ट्रायल होता है उसके बारे में आम जनता को पता नहीं रहता, लेकिन जो मीडिया ट्रायल रहता है उसमें आम जनता अपने परसेप्शंस क्रिएट करती है, एंड वी वांटेड टू डील विद दैट, वी वांटेड टू डील विद पीपल्स परसेप्शन, बिकॉज इफ यू सी टुडेज टाइम we have all got very heavily opinionated. If I see something here, people probably will buy or borrow that opinion and blurt it out there, but at a third place. But in between the transformation of your own self, of understanding what I probably said or anyone else said, and then creating your own opinion, adding to it, and then opinion out has been gone. तो हम सबके पास वो समय नहीं है कि हम खुद सोचें या आत्मशक्ति से आत्मचिंतन करके सोचें। तो ये जो परसेप्शन बिल्डिंग का जो पूरा गेम चल रहा है, and I'm not saying only media is responsible for this. In fact, everything and everyone, every individual is responsible, because we create perceptions in hastiness. We create perceptions in the lack of time that we think we do not have time for, and that affects someone's life. So we wanted to deal with that, and that's what Wrong Side Raju deals with. Excellent, Abhishek. Mr. Piyush Bhatt, we'd like to ask you that what suggestions would you give to young writers? Young writers, I keep in mind the things that with an anticipation someday their creation might be picked up from any filmmaker.
So the very first thing is that you should create great characters. Because films are known and remembered with great characters. You remember any of the film which might have impressed you a lot. I give the example of one very famous movie. अगर आप में से किसी ने नहीं देखी हो तो मैं उनकी बदकिस्मती समझूंगा. वो हमारी गब्बर सिंह वाली फिल्म शोले. वो फिल्म में सभी कैरेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है. वो आप देखिए. द वेरी फर्स्ट थिंग इज कैरेक्टर मेकिंग. देन देयर आर टू थिंग्स के from where to pick up the story. So that is their question. There are two things. They may pick up the story from literature or written on paper or from the surrounding environment, any day-to-day happening. But I am remembered of a very famous quote by Mr. Frank Capra, Italian-American filmmaker. He said, my films must let everybody know, let every man, every woman, every child, my films must let everybody know that God loves him, that I love him, and a day will come that peace and salvation will become reality for them only if they learn to love each other. So, it is the thing that you have to depend upon, keeping in mind. And one thing more, that keep in mind, ask yourself one question, okay, will I be able to see this movie sitting with all the members of my family? That is also the question. Okay, thank you, Madhuri. Thank you so much. With regards regional cinema, I'd like to ask that regional cinema has crossed borders internationally and is now being shown in film festivals, has won several accolades there. With regards to that, I'd like to ask Abhishek Jain and Sumana Mukherjee, what is that element in regional cinema that sets it apart? Madhuri, regional cinema, I don't differentiate cinema in any barriers, whether it's regional or whether it's crossover. I don't think cinema should have any barrier. What was your question? What is that element that sets it apart? So when there is no barrier, your whole world is your stage, you know. So what I feel, if these films, whether it's regional, whether it's national, whether it's a crossover film cinema, whether it's a festival movies, we have so-called typographed it, you know. We have branded it like that. But every cinema have its own viewers, own people who can watch, who like to watch cinema. So if these things are packaged well, marketed well, obviously they will go far beyond. Thank you. So like man said, there are a lot of elements, and while you are making a film, you are just telling a story. That story comes from within you, and that can be in any language. And the stories that you dream of and the stories that are burning down inside your belly is what you know take it out in form of cinema. जब बनाते वक्त आप ये नहीं सोचते कि ये हिंदी में बन रही है कि गुजराती में बन रही है, क्योंकि वो कहानी आपके अंदर से आई है, उसकी भाषा आपकी भाषा है. जो मैंने अंदर पाया है, when I talk to audience, there is a very certain differentiation, and there are a lot of points that they discuss, but to put it in a very simple format, it's like going out to a restaurant and escaping. So it's an escapism when you go for a mainstream film and you're having pizza, and watching a regional film is like having dal khichdi at home. So you connect, you know, there is so much of connection, there is so much of you being there on screen,
कई बार क्या होता है कि हम बहुत बड़े बड़े स्टार्स को और कलाकारों को जब ऊपर देखते हैं तो इट क्रिएट्स एन एस्पिरेशनल वैल्यू, लेकिन जब एक मेरा ऐसा मानना है, जो ऑडियंस ने मुझे कहा है कि जब हम रीजनल सिनेमा पर्दे पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं हूँ, या ये मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, ये मेरे आसपास की बात है, ये मेरी धरती की बात है, ये मेरी भाषा में बात होगी, तो ये मैं हूँ। वो कनेक्ट मुझे लगता है वो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है, और वो वही हमारे लिए इज द मैच विनर। मैं वही वाज ट्राइंग टू से दैट जो आप कनेक्ट का बात कर रहे थे कि दैट कैन बी कनेक्टेड एनीवेयर एज ए ह्यूमन बीइंग। इट्स नॉट, आई डोंट थिंक वो सिर्फ एक रीजन तक ही लिमिटेड है। मतलब if supposedly if you make a film in Gujarat and Gujarati language, you are making Gujarati films, or I make a movie in Bengali language. आजकल इतने सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं. You can dub it, you can subtitle it, you can screen it, you can distribute worldwide. No, but sorry, to adding to that point, you're absolutely right, ma'am. But what I'm trying to say is that जहाँ तक रीजनल ऑडियंस की बात है, जहाँ तक आपकी भाषा की ऑडियंस की बात है, और उसके बियॉन्ड ऑब्वियसली यू कैन डब इट, सबटाइटल इट. समटाइम्स दिस हैज हैपेंड दैट आई हैव shown my film Bayar in Poland and none of the audience was a Gujarati. They didn't understand Gujarati. It's about the story. It's about the cinema and they accept it. Yeah. But primarily talking about the audience and their perception about regional cinema, that's what I think that the connect is what they feel, you know. See, supposedly there are thousands and thousands of Gujaratis stays in UK. There are a lot of stays in UK, US. Okay, so you have the market over there. Yeah, so market is another thing altogether. The audience there, you know, you have the audience there. We have been doing that, but what I'm trying to say is that for that audience and for audience worldwide, I think connection is the root cause of you liking a film, you following a film, and you willing to watch a film of that language. बाहर हिंदुस्तान की जब कोई फिल्म जाती है तो उनके लिए वो एक इंडियन फिल्म होती है. दे डोंट नो इट इज़ बंगाली, गुजराती, मराठी और वॉट. वो एक इंडियन सिनेमा देख रहे होते हैं, तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. जैसे हम, चूँकि ये एक देश के अंदर इतनी भाषाएं चलती हैं, हम देखते हैं पोलैंड का सिनेमा, उसको एक चूँकि एक देश इसलिए पुलिस सिनेमा कह देते हैं. पर हम अगर यूरोप एक जैसा सब कॉन्टिनेंट है, अगर एक देश होता तो हम उसमें भी ओरिजिनल सिनेमा हो जाता. तो एक्चुअली ये रीजनल हमारे यहाँ है क्योंकि एक रीजन को की लैंग्वेज को बिलोंग करता है, बट बाहर जाते ही क्रॉस द बॉर्डर वो इंडियन सिनेमा हो जाता है. Exactly, cinema have its own language. Exactly. और फिर एक और एग्जांपल दो, हमारी एक फिल्म बनी थी पुष्कर जिसमें लैंग्वेज ही नहीं थी, उसको क्या कहोगे भाई? Thank you so much. We'd like to throw the questions open to the audience. Hello, hi everyone, thank you. So I had a question. मुझे ना वो जो पहले की सिनेमा है, जैसे ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चैटर्जी, गुरुदत्त वाले, जो चौधरी पठान, जो ब्लैक एंड वाइट होती है फिर भी कलर होता है उसमें, जो कैरेक्टर होता है. और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे किसी ने बोला कि कैरेक्टर क्रिएशन, पीयूष सर ने बोला कैरेक्टर क्रिएशन है. फिर चश्मे बदूर, you know, गोलमाल, जहाँ पे उत्पल दत्त का कैरेक्टर, you know, it's unforgettable, you know. तो मिडिल क्लास वैल्यूज़ वाली जो फिल्म्स होती है, जो हर लोग कनेक्ट करते हैं उससे, तो वो क्यों नहीं बनती अभी? और क्यों ऐसा है कि जैसे हमने बोला कि चौधरी का जो चौधरी की चाल है, you know, when you see गुरुदत्त, when you see वहीदा रहमान, they're so classy. वहाँ पे एक भी, you know, there's no clothing that's been taken off of a woman, you know, फिर भी चलती है. तो ये मैं खुद मिस करती हूँ कि यहाँ पे हमारे इंडिया में इतना सारा बड़ा मिडिल क्लास है, तो ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती? Sorry, can I? Sorry. वो फिल्में तुम्हें मिस करती है. आज के ज़माने में वो फिल्में बनती हैं, लेकिन यार मिसिंग है. When I was in the film school, this was this dilemma in my mind कि यार वो क्या ज़माना था यार, सत्यजीत रे देख रहे हैं, गुरुदत्त देख रहे हैं, we are watching Kislovsky and and today they are not doing anything. You may die frustrated thinking about this, or you start finding good things in the palette. And I'm telling you, not going too far,
last week there was a beautiful film in Marathi language called Ventilator, which released. There were so many beautiful films which are releasing. It's just that you will have to find them, watch them. They are more beautiful than probably, I'm not comparing any film, but probably these films are more beautiful than your classical that you think of. But ये जो हमें वो समाना था, वो सब में अगर पढ़ेंगे ना तो छूट जाएगा सब कुछ. मैं मानता हूँ कि उसमें भी एक क्लासीनेस था, है, आज की तारीख में भी है. आज भी बेहतरीन कहानियाँ कही जा रही हैं, आज भी खूबसूरती से फिल्म बनाई जा रही है, आज भी ऐसे पात्र हैं जिनको देख करके आपको बहुत मजा आता है, आज भी वैसे कॉस्ट्यूम्स हैं, वैसे सेट्स हैं. इट्स जस्ट दैट you have to reach out, like you reached out to Sahib Baby or Gulam, like you reached out to a Pyasa or any other Satyajit Ray film. You will have to make an effort and reach out. These films are out there. Watch Iranian cinema, watch some Turkish films, watch some Korean films that have been made. There's so many beautiful films being made. It's just that we are consuming so much of information that some crucial information is lost in this entire journey. जैसे बदन में तिल होता है, वैसे आपको अवार्ड फंक्शन में मैं जवाब और देता हूँ. मैं देखते हुए बीच में क्रिटिक्स अवार्ड टाइप का आता है, उसकी जो नॉमिनेटेड फिल्म होती है उनको देखेंगे तो कुछ आपको उसकी झलक मिल जाएगी. हेलो, आई हैव वन क्वेश्चन. आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि स्टार्स के ऊपर कितनी फिल्म डिपेंड होती है, जैसे कि सलमान खान की मूवीज इतनी चलती है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, इज इट द स्टोरी और स्टार कास्ट, व्हाट इट इज लाइक? I just want to know, जैसे रीजनल फिल्म्स के भी हीरोज आ सकते थे इस लेवल पे? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, मैं खुद ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या चल रहा है. हम तो चाहेंगे कि रीजनल फिल्म्स के हीरोज उस स्टार वैल्यू तक ना पहुंचे. आप जो कह रहे हैं कि कितना डिपेंडेंसी है, जितना आप बजट सोचेंगे, जितना आप ग्रीड रखेंगे, उतनी डिपेंडेंसी होना शाहरुख खान और सलमान खान. ग्रीड थोड़ी कम कर दीजिए, आप अच्छी खूबसूरत फिल्म बना करके आपके ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं. लेकिन मुझे वर्ल्ड वाइड रिलीज करना है, मुझे 100 करोड़ पहले वीक में कमाना है. जितनी ग्रीड ज्यादा, उतना ज्यादा आपको इन पे डिपेंडेंसी रहेगी. दैट्स द एम. Bengal में there is superstar Jeet and Prashanjit, and without them still now film don't run in suburbs, in the villages, but in the Kolkata people do see the content driven movie. नहीं, वो जो बंगला फिल्मों की आप बात कर रहे हैं वो साउथ इंडियन फिल्मों का बंगला वर्जन है. और उसमें मजेदार बात क्या है, साउथ इंडियन लोग मूंछ लगाते हैं, जब बंगाली मूंछ लगाता बड़ा नकली सा लगता है, वो वैसा लगता भी नहीं है. वो हाथ में तलवार लेता बड़ा नकली सा लगता है, बंगाली के हाथ में कलम अच्छी लगती है. तो वो और एक मुसीबत है कि साउथ इंडियन कचरे का गंदा वर्जन बंगाली में. We have another question there. Last question. मुझे ये पूछना है कि संदीप जी ने बताया कि सिनेमा आफ्टर सिनेमा होता है, चाहे रीजनल हो, कुछ भी हो. मैडम ने बोला सबटाइटल होने की वजह से सब पता चलता है. ये बात के आपकी बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि रीजनल लैंग्वेज और उनका कल्चर अपना खुद का होता है. अगर मैं गुजरात में सबटाइटल देके बंगाली फिल्म दिखाऊंगी तो वो अपने आप को उसके साथ मैच नहीं कर पाएंगे. जो मैं बात कहना चाहता हूँ, आपने बोला कि सिनेमा होता है, लेकिन रीजनल लैंग्वेज इसलिए अपने स्टेट में ज़्यादा वो चलती है और इसलिए वहाँ चाहिए क्योंकि गुजरात में खुद का अपना एक कल्चर है, बंगाल का अपना खुद का एक कल्चर है और बिहार का अपना खुद का एक कल्चर है. ठीक है, हम जाके देखते हैं, लेकिन कितने लोग हैं ऐसे जो सबटाइटल वाली फिल्में भी देखने जाते हैं. इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट. आई एग्री विद मिस्टर जैन कि अपना खुद का एक रिचनेस और अपना एक कल्चर है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट इज दिस. But I have a question on this. अगर रीजनल फिल्में अगर अपने रीजन में ही ज़्यादा चलती है और अगर नहीं चलती, तो रिसेंटली जो द गुड रोड मूवी है जो गुजराती है और बेसिकली गुजरात की जो एकदम लोकल गुजराती लैंग्वेज है वो ऑस्कर में तक कैसे पहुंची? हेलो, जो ये मैडम ने सवाल किया कि बंगाली फिल्म ये सुमाना जी बनाएगी, तो मैं देखूंगी चाहे उसमें सबटाइटल हो, whether it is with subtitle or not. I will not be able to connect myself with the culture and environment. Okay.
मगर मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आप आपको गुजरात के साथ जोड़े क्यों रखना चाहती है? पहला सवाल ये है, आप इतना ब्रॉड माइंडेड क्यों नहीं बन सकती कि मैं बंगाल को मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, उसका कल्चर क्या है? पहली बात ये है। और मैंने फिल्में देखी है, मराठी में अभी आई है, जो इन्होंने भी बोला अभिषेक जी ने, कितनी अच्छी फिल्में आती है। आप दो आदमी को और दो पड़ोसियों को पूछेंगे तो देखने वाले मिल जाएंगे डेफिनेटली। बहुत लोग देखते हैं रीजनल फिल्म्स। और कल जो उन्होंने मधुर जी ने बताया, जमाना 40 साल में बदल गया है, वो आपका सवाल के साथ मैं रिलेट करता हूँ कि पहले ऐसा जमाना था कि पेरेंट्स लोग जाते थे, फिल्में देखते हैं और बच्चे को कहते हैं आपको देखने की चीज़ नहीं है। अब क्या है कि मेरे लड़के जब जवान हुए तब बोलते थे, वो जाके डैडी आप मत जाना, वो जमाना है। पापा आपको देखने वाली फिल्म नहीं है, आपको ये शूट करेगा अच्छा लगेगा। ओके, उनका वो लड़की ने सवाल किया। एक्सक्यूज आई हैव टू क्वेश्चन। एक सेकंड, मैं जवाब इसका आपको दूँ। मैंने पहले ही कहा था, जैसे देश के बाहर हर सिनेमा इंडियन सिनेमा होता नंबर 1। दूसरा फिर मैं उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके बताता हूँ। आपको पता है, अब डांडिया सिर्फ अहमदाबाद, राजकोट और बड़ौदा में नहीं होता है, डांडिया बंगाल में भी होता है। गणपति पूजा शुरू हुई थी 100 कुछ साल पहले, तिलक जी ने स्टार्ट की थी। मैं अभी दिल्ली और यूपी के हिस्सों में गणपति पूजा देख के आया और उतनी दूर है। तो जैसे शब्द चले जाते हैं ऐसे कल्चर भी जाता है। और सिनेमा क्या लेके जाता है? कल्चर, थॉट और वो। तो मज़ेदार बात है कि कलकत्ता के लोग डांडिया का मजा ले। आप बताइए डोसा कहाँ का है डिश? आज सब लोग मेरे साथ बैठ के गुजरात में डोसा ही तो खा रहे थे। हमने सोचा ये साउथ इंडियन डिश है, वो इंडियन डिश हो चुकी है। तो इसी तरीके से हमारा सिनेमा जो, मैंने खाने की थाली से इसीलिए एग्जाम्पल दिया था क्योंकि हिंदुस्तानियों की सबसे प्रायोरिटी सांस लेने के बाद खाना ही होता है। फिल्में दिमाग का खाना है, दिमाग की ग़िज़ा है, फूड है। अब आता हूँ जो बच्ची ने पूछा सवाल, बेटा मैंने पहले ही कहा था कि जो अब इंटरनेशनल फेस्टिवल में कैसे पहुँच जाती है, वो हमें रीजनल के चश्मे से नहीं देखते हैं। हमारा पहला इंटरनेशनल अवार्ड सत्यजीत रे लेके आए थे जो बंगला में था, उनके लिए वो इंडियन सिनेमा होता है। ये हम लोग आपस में ये जो गुजराती, मराठी, बंगाली करके बैठे हुए, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और ये सिनेमा भी उसके लिए कोशिश कर रही है कि हमारा सिनेमा बाहर जाता है तो इंडियन सिनेमा होता है। Thank you. I would request the audience to wrap up and pull back their questions for now. I just want to say one word. Cinema is inclusion of everything, everybody, every culture, every form of art, without boundary. एक बात Thank you so much. एक बात कहना चाहूँगा। एज एन एक्टर आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी की ओर से, क्योंकि सिनेमा का एक ही हमारा सेशन है और सिनेमा ने साहित्य को बहुत अलग तरह से ऑडियंस को बताया है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू गाइस। Thank you so much. और एक क्वेश्चन सबको बाद में मैं आंसर ले लूँगा कि आपका ड्रीम लिटरेचर कौन सा है जो आप पर्दे पे लाने वाले हो नेक्स्ट? सबको एक क्वेश्चन। थैंक यू। One last question I want to ask. Can you please hold on the question for Like one of you said that one picture says 1,000 words. So I am asking how difficult it is to capture those 1,000 words in one picture when you are making movie on a literature or something very good script or a well-known story. How difficult is that? And second question is that nowadays like lot of writer writing books just to think that they will make movie out of that. So they put some masala and all those things. So what's your take on that? Short answer, sorry, because of paucity of time, we have to wrap up. पहला क्वेश्चन जो था आपका कि पहला क्वेश्चन क्या था आपका, फिर से बताएं। हाँ, सबसे बड़ी मुसीबत हो गई है कि सिनेमा को आपने माँ जैसा मान लिया कि सब कुछ यही करेगी। अरे भाई उसकी वो फॉर्म है, 2 घंटे के अंदर सब कुछ सिनेमा से चाहिए। जैसे हम लोग कोई भी पॉलिटिकल सरकार ये नहीं, सरकार सब कुछ करेगी, हम भी तो कुछ करेंगे। माँ घर का बजट भी चलाए, बाप को भी खुश रखे, औलाद को भी खुश। अरे भाई सिनेमा की अपनी लिमिटेशन है, 2 घंटे में जितना हो सकता है उतना ही वो समेटेगा, उसका एक फॉर्म है। और जो दूसरा सवाल आपने पूछा वो क्या था? हाँ, वो जो कौन सा पिक्चर से पैसा बने वो प्रोड्यूसर की चॉइस है, उसमें किसी क्रिएटिव आदमी की चॉइस नहीं चलती। क्रिएटिव पीपल आर गवर्न बाय मोस्टली
नॉन क्रिएटिव पीपल। तो आप समझ लो थिंग्स Sir, I would like to just add 2 lines. What was the previous topic about the regional movies and that we have missed out that the Tamil and Telugu films, what we have been seeing right now on TVs and TV channels, and frequently we have been seeing this film with subtitles only and dubbed in Hindi only. And those movies are also being remade in Bollywood. That we are connected with the South culture also, that we know so many things about the South things. Okay, so that way regionally also we can also connect that way. That was only my suggestion. अच्छा, I was just answering your question. सिनेमा दिल से बनती है, दिमाग से नहीं. Thank you so much. Thank you, the audience. And thank you all the panelists for very thought-provoking statements that you all made. And we'd like to now felicitate the panelists. Thank you. As expected, that was an extremely interesting session. I thank all our panelists and I request Harshit Jadhav to present them with the momentum.